Hello students, good morning and welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to explain the third chapter from the next paragraph. Okay. So students, open your book, page number 29. I will start this chapter from where it was left in my earlier video. So try to understand it well. Page number 29. What else can you ditch? Plastic straws. What else can you ditch? Ditch means give up. और क्या क्या चीजें आपको गिव अप कर देना चाहिए, फॉरसेक कर देना चाहिए? प्लास्टिक स्ट्राज. फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक स्ट्राज विच आर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक. Why not sip your drink instead? Writer suggest करते हैं we should not take our drinks by using straws, but we should drink it instead from cup or glasses. Say no to plastic pens and yes to ink pens. और क्या एडवाइज करते हैं? We should say no to plastic pens. That means we should not use plastic pens, but we should use ink pens which are filled with ink. As for the plastic bags, जहां तक प्लास्टिक बैग्स का प्रश्न है, as far as plastic bags are concerned, it is important to know that the production of ground 9 plastic bags uses energy equal to driving a car for 1 kilometer. क्या कहता है लेखक? It is important to know, ये जानना बहुत नेसेसरी है, that production of around 9 plastic bags, that means manufacturing of 9 plastic bags utilizes energy equal to energy utilized by a car up to 1 kilometer. यानी जितनी एनर्जी एक कार को 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में प्रयोग करनी होती है, उतनी एनर्जी 9 प्लास्टिक बैग्स को बनाने में यूज हो जाती है. वर्ष यूसेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, इसलिए बहुत बुरी बात है. यूसेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स कंट्रीब्यूट्स. यूसेज मीन्स यूजिंग. प्लास्टिक बैग्स का प्रयोग करना कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. दैट मीन्स इट क्रिएट्स ग्लोबल वार्मिंग. इट पोल्यूट्स एटमॉस्फेयर. नॉट ओनली एटमॉस्फेयर बट द सॉइल इज आल्सो पोल्यूटेड. And problem of global warming is increasing. It is becoming a very serious problem. We need strictly say no to plastic bags. That's why it is advisable to all that we should not use plastic bags anymore. Start segregating your waste. राइटर कहते हैं कि हमें segregating मीन्स होता है पिकिंग, सेपरेटिंग. सेग्रीगेटिंग मीन्स सेपरेटिंग. हमें अलग करना सीखना चाहिए, यानी सब चीजों को अलग करना सीखें. वेस्ट को, कौन सा वेस्ट कहां पे रखना है, कैसे यूटिलाइज करना है. लेट अस स्टार्ट सेग्रीगेटिंग आवर वेस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गार्बेज बर्डन ऑफ आवर सिटीज. राइटर एडवाइज करता है कि हमें डिफरेंट कैटेगरी के गार्बेज को शुड बी सेपरेटेड, अलग अलग रखना चाहिए. दैट्स वाई इट मे बी रिसाइकल्ड, इट मे बी रीयूज्ड एंड इट मे बी reduced. The garbage may be reduced and most of the things which are usable can be recycled. Why? When you start segregating your waste, क्योंकि जब भी आप अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, that means you separate it in different groups. You are reducing the waste. This means that waste is being reduced by you.
that gets transferred to landfills and indirectly cause water, air and land pollution. Because if you don't segregate the waste, plastic bags and some other things which can't be decomposed may be very dangerous, may be harmful for our soil, water, air. They may create contamination, they may create pollution of the soil, air, water. Okay, segregating of waste makes different process like composting. सेग्रीगेट करने में डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं लाइक रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग एंड बर्निंग इजी. सम थिंग्स may be burnt, the things only which can't create any pollution, air pollution. The things which may be decomposed can be composted, and things which can be recycled are turned into some new articles. What to do? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्टली सिंपली गेट योर सेल्फ सम कलर कोटेड बिन्स. सबसे पहले हमें कुछ कलर कोटेड डस्टबिन्स लेने चाहिए इन डिफरेंट कलर्स. डिफरेंशिएट द बिन्स इनटू द फॉलोइंग. इन बिन्स को, कचरे के डब्बों को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करना है. फर्स्ट वन, ऑर्गेनिक इज ग्रीन. ऑर्गेनिक वेस्ट को ग्रीन बिन में कलेक्ट करना है. ग्लास इज येलो क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोजेबल, इट कैन बी डिकम्पोज्ड इजिली. देन ग्लास इज येलो फॉर पुटिंग द मटेरियल्स विच आर मेड ऑफ ग्लास थिंग्स. Broken glass etc. could be placed in yellow dustbin. Next one, paper is white. Things, that means waste of paper, should be thrown in white dustbin, and things which are made of metallic things should be placed in grey dustbin, and plastic in blue. Then hazard means very dangerous things that are poisonous should be placed in red bins. Okay, how? Start segregating your waste into two categories. Firstly, you have to classify your waste material into two groups. You have to divide the waste material into two categories. First one, biodegradable things. That means things which can be decomposed easily, which include all the organic waste. जिसमें organic waste होता है, for example kitchen waste, vegetable peels, fruits, flowers, leaves from the garden. And non-biodegradable, that means things which can't be decomposed easily. They take millions of years to be decomposed. For example, plastic, paper, glass, metal, etc. They don't decompose easily. It is important to know that toxic waste includes things like old medicines, pens, chemicals, bulbs, spray, can, fertilizers, pesticides, containers, batteries. Okay? Students, remember that toxic waste, that means very poisonous waste material, should also be separated and placed in separate bins. These poisonous things include old medicines, pens, chemicals, bulbs, fertilizer, spray, batteries, etc. Pesticides, etc. But batteries, solid waste consists of baby diapers, etc. These things are very toxic. They are very poisonous. They can be very harmful for us. Why is it necessary? राइटर कहता है कि हमें इन चीजों को क्लासीफाई करना नेसेसरी क्यों है? If we don't dispose of the waste now in systematic manner, अगर हम वेस्ट को सिस्टमेटिक मैनर में डिकम्पोज नहीं करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, ये सिद्ध किया गया है, वी विल नीड मोर देन 1400 स्क्वायर किलोमीटर टू जस्ट डिस्पोज द वेस्ट.
हमें इस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए 1400 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ेगी। दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ अ सिटी लाइक दिल्ली। इसका मतलब है कि हमें इतने स्पेस की जरूरत होगी जितना कि एरिया दिल्ली का है। दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वेस्ट विल बी क्रिएटेड इन द सिटीज एंड फॉर दिस वेस्ट द एरिया दैट इज नीडेड अबाउट 1400 square kilometer, just like area of Delhi or some any other big city. Even though this seems impossible, और ये भी बहुत impossible लगता है, we need to address it. हमें इसे समझना होगा। Reuse. Next thing क्या है? Reuse. हमें बहुत सारी चीजें होती हैं। There are so many things. There are so many waste things. There is a lot of garbage which can be reused. यानी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम reuse कर सकते हैं। What is this about? Reuse is a step up from recycling. Reuse का मतलब है हम किसी चीज को recycle कर रहे हैं। Repurposing. Repurposing that means reusing something for a different purpose. किसी चीज को डिफरेंट पर्पज के लिए रीयूज करना, लाइक फ्लावर पॉट्स एंड सम अदर थिंग्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पजेस। तो यू शुड रीयूज थिंग्स। योर हाउस होल्ड ट्रैश इन एनी मैनर इज अ गुड वे टू रिड्यूस द ऑलरेडी लोडेड गार्बेज डंप। यानी हम घर में बहुत सारी चीजों को रीयूज कर सकते हैं, और अगर हम रीयूज करते हैं दैट मीन्स इट इज रिसाइकलिंग, एंड दिस इन दिस वे वी कैन मिनिमाइज द वेस्ट, वी कैन मिनिमाइज द क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड एवरी डे इन आवर हाउसेस, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। What to do? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? We know that there are a large number of plastic bottles. हमारे घर में बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स निकलती हैं that are used and discarded, जिनको हम यूज करते हैं, and discarded that means thrown, फेंक दी जाती हैं every single day, यानी per day. So many plastic bottles are thrown here and there. Instead of just throwing them, बट हमें इनको फेंकने की बजाय क्या करना चाहिए? स्टार्ट रीयूजिंग देम ऑल ओवर अगेन। वी शुड ट्राई टू रीयूज देम, वी शुड नॉट थ्रो देम हियर एंड देयर। हाउ? सिंपली यूज इट एज स्टोरेज बॉक्स। प्लास्टिक बॉटल्स को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं? स्टोरेज बॉक्स के रूप में फॉर योर एसेसरीज। एसेसरीज मीन्स सेट ऑफ आर्टिकल्स और थिंग्स used to complete something like dress, earrings, bracelets, so many things. तो हमें इनको पुनः यूज करना चाहिए। बहुत सारी चीजों को इसमें डाला जा सकता है। ग्रो अ प्लांट इन इट। सपोज एक प्लास्टिक बॉटल में एक फ्लावर का पार्ट बनाया जा सकता है, इसमें प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। क्रिएट अ शो पीस, एक शो पीस के रूप में इसको चेंज किया जा सकता है। जस्ट बी क्रिएटिव। आपका ब्रेन क्रिएटिव होना चाहिए एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, एंड डेफिनेटली यू विल फील सरप्राइज्ड एट मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यूज, because there are many opportunities when you reuse the plastic bottles or so many other things. Okay, so students, this chapter is completed. In my next video I will start from grammar, so revise it again and again and complete your written work. You have to do back size exercises also. Okay, thanks. Good morning student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in previous class we were discussing
various forms of energy. Now today we will continue its remaining part. So student, what is sound energy? A vibrating body possesses sound energy. What is sound energy? A vibrating body possesses sound energy. Means to say, when a body vibrates, it will produce sound. Student, the sensation felt by our eardrums is called sound, and sound is that form of energy which makes us hear. Student, in our daily life, we hear many types of sound, such as sound of telephone bell, sound of television, and sound of radio and sound of school bell, etc. Student, we can only hear the frequency from 20 to 20,000 hertz. And what is hertz? Hertz is the unit of frequency. Hertz is the unit of frequency. And what is frequency? What is frequency? The number of vibrations per second is called frequency. So what is frequency? The number of vibrations per second is called frequency. Now, what is electric energy? The energy produced by the flow of electric charge through a conductor is called as electric energy. So what is electric energy? The energy produced by the flow of electric charge through a conductor is called electric energy. Student, electric energy is very essential in our daily life. By the help of electric energy, we can run electric motor and geyser and washing machine and ceiling fan, etc. And it is also used in lighting bulbs, tube lights and CFL. Now, what is chemical energy? The energy possessed by fuels such as coal, oil, gas, etc. is called chemical energy. So student, what is chemical energy? The energy possessed by fuels such as coal, oil, gas, etc. is called chemical energy. Student,
the chemical energy is a kind of hidden energy in the atom of molecules or compound, and this energy is generally released in the form of heat energy, and this energy is generally released in the form of heat energy. For example, the chemical energy of petrol or diesel is capable to move a car or truck, or the food that we eat possesses chemical energy which changes into heat energy, and that makes us to do work. Now, what is nuclear energy? The energy is stored in atoms is called nuclear energy, or atomic energy. So what is nuclear energy? The energy is stored in atom is called nuclear energy or atomic energy. Student, when a heavy nucleus is split into two light nuclei, or when two light nuclei combine together to form a heavy nucleus, then the energy released during this process is called as nuclear energy. And for example, the nucleus energy is used by a nuclear reactor, or hydrogen bomb, or atom bomb, etc. Now, interconversion of energy. Student, as we know that energy can neither be created nor be destroyed. It can only change from one form to another form. So some examples of conversion of energy from one form into other form are mechanical energy changes into heat energy, light energy and sound energy. Student, when the blade of a knife is placed against the rotating grinding stone, then mechanical energy changes into heat energy, light energy and sound energy, and due to the force of friction. Now, mechanical energy changes into potential energy and kinetic energy. Student, when an arrow is stretched in a bow, the mechanical energy changes into potential energy of the bow string, and when the string is released, the potential energy changes into kinetic energy of the arrow. Now, chemical energy changes into light energy. Student, when a torch is switched on, the chemical energy of the cell change into electrical energy. And now, electric energy changes into heat energy. Student, when electric energy is passed through devices such as heater, geyser, toaster or electric iron, it changes into heat energy. Student, some more interconversion of energy we will discuss in our next class. So, today's class is over. Thank you.
3 bifurcations, जिसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके थे, what was element, what was compound and what was its chemical formula. Now जो इसकी यूनिट 2 है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर एंड कंपाउंड. तो इसमें सबसे पहला वर्ड आप देखो, ये है प्योर सब्सटेंसेस. तो जैसा कि ये वर्ड है प्योर सब्सटेंस, तो प्योर का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरीके से प्योर हो, जिसमें कोई और चीज मिली हुई ना हो. यानी कि हम कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, जिसमें सिर्फ एक टाइप के ही एटम प्रेजेंट हो, सेम काइंड के ही पार्टिकल प्रेजेंट हो. तो प्योर सब्सटेंसेस क्या है, द पार्टिकल्स हैविंग ओनली the substance which have only one kind of particle या same kind of particle is called pure substance. और ये कैसा हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. होमो का मतलब होता है सेम. What does the word means homo? Homo means होता है बच्चों same and hetero means होता है different, है ना. So अगर होमो का मतलब सेम होता है, तो ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, इसमें एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं और इनका मिक्सचर किस तरीके का दिखाई देता है, होमोजीनियस मिक्सचर दिखाई देता है. क्यों दिखाई देता है होमोजीनियस, क्योंकि इसमें अगर आप पूरी तरीके से देखो तो एज अ होल आपको ये एक ही जैसे पार्टिकल दिखाई देंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्योर सब्सटेंस है, मान लीजिए गोल्ड की कोई चेन है, तो गोल्ड की चेन में सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल होंगे, एयू के ही पार्टिकल होंगे. गोल्ड का सिंबल क्या होता है, एयू होता है, तो उसमें सिर्फ एयू के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, एयू के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो दैट इज व्हाई कह रहे हैं हम, ये कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है. दूसरी चीज ये कि जो इसमें सेम काइंड के पार्टिकल्स होते हैं. अभी देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी प्योर सब्सटेंसेस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट अगर कंबाइन हो रहे हैं तो उनका रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड होता है. ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट मिक्सचर, क्योंकि देखिए प्योर सब्सटेंस के बारे में बात हो गई, अब हम बात करेंगे मिक्सचर की. तो मिक्सचर क्या होता है, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली होमो और हेटेरोजीनियस मिक्सचर. होमो का मतलब सेम, अगर कोई चीज आपको सेम तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में दिखाई दे रही है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है. और हेटेरोजीनियस में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आपको अलग अलग नजर आ रही होती हैं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन होमो और हेटेरोजीनियस. उसके बाद ये जो मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर कैसे बनता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम मिलाते हैं इन एनी प्रोपोर्शन, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, आर कंबाइंड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, देन मिक्सचर इज फॉर्म्ड. बात समझ में आ रही है. तो मिक्सचर क्या है, जब दो या दो से ज्यादा चीजों को हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दें तो वो बनता है मिक्सचर. और मिक्सचर क्या है, होमो और हेटेरोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब स्टेट एक ही होगी, सेम होगी. हेटेरोजीनियस में दो अलग अलग फेज आपको नजर आ रही होंगी. अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसका एग्जांपल बेटा हम कह सकते हैं कि होमोजीनियस के एग्जांपल में आप देखें, ऐसा कोई मिक्सचर ले लीजिए जो आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से अगर आप देखें उसे तो वो एक ही जैसा दिखाई पड़े. ठीक है. तो आप जनरली एग्जांपल ले लीजिए घर पे या बाहर. सॉइल देखिए, मिट्टी, वो कैसी होती है, होमोजीनियस होती है, उसमें कोई भी कॉम्पोजिशन आपको अलग अलग नजर नहीं आता है. दूसरी बात क्ले देखिए, जिसे बच्चे खेलते हैं, टॉय मेकिंग मटेरियल क्ले, तो ये भी कैसा है, ये भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट हेटेरोजीनियस, तो हेटेरोजीनियस में क्या बताया हमने कि दो अलग अलग फेज आपको नजर आएंगी. तो ठीक है, तो इसमें देखो आइसक्रीम होता है हेटेरोजीनियस, ब्लड भी होता है बच्चों. ठीक है. मिल्क भी होता है, मिल्क में प्रोटीन और फैट की लेयर होती है. तो ये सारे आपके होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के एग्जांपल हो गए. दूसरी बात, अगर स्टेट के बेस पे हम देखें इसको मिक्सचर को, तो देखिए तीन तरीके के होते हैं. सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर, तो सॉलिड को सॉलिड में घोल करके मिक्सचर बनाया गया, मिला करके मिक्सचर बनाया गया. उसका एग्जांपल है एलॉय. नाउ द वर्ड एलॉय मींस जब दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल्स को मिलाते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. ठीक है. तो बनता
दिया तो लिक्विड का लिक्विड में मिक्सचर बन गया। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई ना कि सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर कैसे बना, सॉलिड का लिक्विड में मिक्सचर कैसे बना और लिक्विड का लिक्विड में मिक्सचर किस तरह से बना। उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहला देखो वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई मिक्सचर बनता है तो उसका कंपोजिशन हमेशा सेम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर जब हम बना रहे होते हैं तब उसमें दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन ही किसी भी रेशियो में करते हैं। मान लीजिए आपने कोई मिक्सचर बनाया, मान लीजिए आपने शक्कर और पानी घोल करके एक मिक्सचर बना दिया। तो पहली बार जब आपने मिक्सचर बनाया तो उसमें 2 चम्मच शक्कर डाली और पानी 1 गिलास लिया, और जब सेकेंड टाइम में आपने मिक्सचर बनाया तो उसमें क्या किया, 4 चम्मच शक्कर डाल दी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कॉम्पोजिशन उसका कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, कोई फिक्स्ड चीज नहीं है कि आपको इतने ही चम्मच या इतने ही ग्राम या इतने ही मिलीग्राम डालने हैं। तो वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, किसका होता है बच्चों, मिक्सचर का कॉम्पोजिशन वेरिएबल होता है। और ये फिजिकल चेंज को शो करते हैं। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसका रेशियो फिक्स नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स नहीं होते। तो क्या है, इसीलिए ये फिजिकल चेंज शो करते हैं। नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी नहीं होती, स्पेशल प्रॉपर्टी भी नहीं होती, क्योंकि रेशियो फिक्स नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप चीजें घटाते बढ़ाते हैं उसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ठीक है, होमोजेनिटी यानी कि वही समानता वाला। ठीक है, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मिक्सचर के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है बच्चों, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय सम फिजिकल मींस यू कैन सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है ना, तो कुछ भी फिजिकल काम करके आप मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, पानी में नमक का घोल बनाया, मिक्सचर बनाया, तो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हुआ। पानी तो लिक्विड हो गया और सॉलिड आपने क्या बोला, नमक, तो क्या हो गया, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर बना। अब उस मिक्सचर को आपने क्या किया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना है, सेपरेट करना है। तब फिर आप क्या करेंगे, कोई ना कोई फिजिकल तरीका अपनाएंगे। मान लीजिए आपने उसको बॉईल कर दिया। जब आप बॉईल करेंगे तो पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा और जो भी नमक आपने बोला था वो नीचे सॉलिड के फॉर्म में बचा रहेगा। सो दैट इज द सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। सो इन दिस वे यू कैन से कि मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बच्चों, यू कैन सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। ओके, एनर्जी चेंज क्या है, जब मिक्सचर बनता है तो एनर्जी चेंज मोस्टली नहीं होती है। ठीक है, एनर्जी चेंज मिक्सचर के बनने में एनर्जी का चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इसमें भी वही बात है, रेशियो फिक्स नहीं है तो एनर्जी का चेंज होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो आज हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर कितने टाइप का होता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, और स्टेट के बेस पे कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, यानी इसकी जो भी फिजिकल स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मिक्सचर की। तो आज की इस क्लास में मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Students, I have discussed chapter first, the constitutions of India in many topics. Tomorrow I will discuss the other topics of these chapters in this video. This is your civics class. Understood? At first we discuss about some motivations of that work hard is necessary for all people to get success in life. In this world, many great persons have said that God helps those people who work hard. It means ईश्वर भी उनकी सहायता करता है जो वर्क हार्ड करते हैं, and it is the principle is this principle
इज वेरी क्लियर। ये प्रिंसिपल क्या है? वेरी क्लियर, पूरी तरह से स्पष्ट है। अंडरस्टैंड? सो every students work hard to get success in life. Now students, I will discuss, in previous video I have discussed the constitutions of India. What means constitutions? यानी constitutions का क्या मतलब था, या meaning of constitutions. Today I will discuss you Constitution Assembly, यानी Constitutions Assembly. Constitutions Assembly means in Hindi Constitution यानी संविधान, Assembly सभा. संविधान सभा का क्या मतलब है? What means Constitution Assembly? तो our Constitution was framed by Constituent Assembly, माने हमारा Constitution जो था वो फ्रेम किया गया था. तो फ्रेम किसके द्वारा किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, माने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इसे फ्रेम किया गया. सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड अ वाइड रेंजिंग रिप्रेजेंटेशन, माने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड अ वाइड यानी वाइड रेंजिंग रिप्रेजेंटेशन, माने इसमें क्या था? बहुत ही वाइड रेंजिंग रिप्रेजेंटेशन था. The majority of members belong to India. In that time, Constitution Assembly, यानी a majority of members belong to India. माने इसमें क्या थे? बहुत बड़ी संख्या के जो members थे belong to India, माने वो इंडिया से belong करते थे. नेशनल कांग्रेस एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, माने बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो बिलोंग टू इंडिया, जो क्या थे? नेशनल माने नेशनल कांग्रेस यानी नेशनल कांग्रेस से थे एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज से. द प्रोमिनेंट मेंबर्स यानी इंपॉर्टेंट मेंबर्स, माने इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, माने द मेंबर्स इंपॉर्टेंस. तो हाउ मेनी मेंबर्स आर इंपॉर्टेंट in Constituent Assembly? First, Rajendra Prasad. Second, Sardar Vallabh Bhai Rai, माने सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, सर तेज बहादुर, भीमराव अंबेडकर एंड अदर्स. मैंने ये मेंबर्स क्या थे? प्रोमिनेंट यानी इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे. अंडरस्टैंड? तो नाउ वी डिस्कस कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रेम्ड बाय इंपॉर्टेंट मेंबर्स एंड सम मेंबर्स आर these. Now we discuss about drafting committee. Drafting committee, what means in drafting committee? Drafting committee means कि on 29 August 1947 यानी on 29 August 1947 the assembly appointed a drafting committee. माने 1947 29 अगस्त को क्या था? असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की. द चेयरमैनशिप ऑफ द भीमराव अंबेडकर, द ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था, माने ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो क्या था? BR अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर. टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने क्या किया? प्रिपेयर अ ड्राफ्ट माने कॉन्स्टिट्यूशन माने हमारे संविधान का इन्होंने क्या किया? एक ड्राफ्ट माने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया. It had 7 other members. इसमें क्या थे? इसमें 7 other member माने 7 दूसरे अदर मेंबर्स भी थे. माने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन माने जो चेयरमैन था वो कौन था? चेयरमैनशिप जो है वो BR अम्बेडकर माने भीमराव अम्बेडकर को दी गई. एंड 7 अदर्स में जो थे श्री एन गोपाला स्वामी यानी श्री एन गोपाला स्वामी,
श्री अलाउद्दीन कृष्णाबेरी, अयार श्री KM मुंशी and Sri Syed Muhammad Salullah. These are 6 other members of the drafting committee. Understand? First we discuss preamble. Preamble means यानी preamble क्या था? Preamble means introduction. Introduction, that is the what means the introductions of the constitution. मैंने constitutions का introduction यानी प्रस्तावना क्या था. तो constitutions of India मैंने इंडिया का constitutions like and many other democratic constitutions मैंने जैसे other countries के जो भी हमारे constitutions थे like as the is the preceded by the preamble मैंने उन सबको preamble मैंने प्रस्तावना में प्रसिद्ध किया गया. The preamble is the introduction of the constitution. माने so यानी thus we say the preamble यानी जो preamble यानी preamble था उसे constitutions का introduction कहा गया या thus we know the preamble is as the introduction of the constitutions. Students, first part of the preamble are sovereign, socialist, and secular democratic republic. Now we discuss preamble is the introduction of constitution. माने preamble क्या है? Constitutions का introduction है. यानी preamble is also called the introductions of constitutions. And first part of the preamble, यानी first part of the preamble are sovereign. Sovereign यानी sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. तो sets out of the objectives of the state and second one these are the first part of the preamble. First part but the introduction in constitutions of the India is the first part of the sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. Understand? Now we discuss the second part. Any second part of the preamble, any second part of the introductions of the constitutions are justice, न्याय, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, एकता, एंड फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड यानी भाईचारा. यानी सेकंड पार्ट माने preamble के सेकंड पार्ट क्या है? जस्टिस यानी न्याय है, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता है, इक्वलिटी एकता है, एंड फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा. Represents like the ideas of the state are what the desirable. Represents the ideas माने these ideas are represented by the preamble that the state or that cause is desirable. माने जो क्या है अपनी desire माने इच्छा पर निर्भर करते हैं. Now we also call the opening words. यानी opening words are कि we the people of India यानी we all माने now opening words and opening words are the कि the people of India माने हम सभी क्या है? the people of India, so we call the Indians. माने हम सभी क्या है? people of India माने इंडिया के लोग हैं, so we call the Indians माने इसलिए हम सबको क्या Indians कहा जाता है. have got a special significance of their own माने have got माने so we got माने so we got a special significance of their own माने इस सब के बाद we have got a special significance of their own. Understand? Now we discuss the preamble first part sovereign, socialist. So we now we discuss first part is sovereign. First part is sovereign. Sovereign means but it means sovereign का मतलब क्या होता है? In Hindi we also call प्रभु. It means that India is free from external control. India is free from external control and follows an independent policy. माने ये क्या है? इंडिया इसका मतलब है यानी sovereign means कि इंडिया जो है वो सारे एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री है एंड फॉलो एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी माने वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो कर सकती है यानी फॉलो एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी.
Understand? Second point is socialist. Socialist it means हमारे socialist का मतलब है an equal and fair distributions of the nation's wealth among the all section of the people of the country. माने in India there were fair distributions of the wealth in all sections of the people, because in India lives many classes से many religious persons. माने इंडिया में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, बट इट मीन्स माने सोशलिस्ट मीन्स मतलब है कि इट इज इक्वल, माने ये यहाँ पर सभी लोग क्या है, इक्वल है, और यहाँ पर वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंट्री के सभी पीपल के समान इक्वल होता है. अंडरस्टैंड? थर्ड पॉइंट इज सेक्युलर. तो इट मीन्स इसका मतलब है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल रिलीजियंस. माने हमारे यहाँ मैनी रिलीजियंस माने कई धर्म के लोग रहने से यहाँ सबके साथ क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट. माने सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है बाय द स्टेट, माने किसी स्टेट द्वारा. द वर्ड सोशलिस्ट माने जो सोशलिस्ट यानी सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स माने सेकुलर वर्ड्स जो है एडेड माने ऐड किए गए टू द प्रेमेबल. माने प्रेमेबल में किसके द्वारा, बाय 24 अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ 19 by these words and secular and socialist word were added to the preamble by the 24th amendment in the year of 1976. Now students, today I had discussed many topics of this chapter, and next video I will discuss other topics of this chapter. Thank you for attending this class. सुस्वागतम. मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप घर पे हैं, घर पर रहकर भी आप निरंतर अपनी पढ़ाई का अभ्यास करते रहें, क्योंकि आपको पता ही है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है. कुंजी यानी की, ठीक है. तो बिना परिश्रम किए मुझे या हम सबको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, ठीक है. इसलिए परिश्रम करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, जिससे आप सफलता को प्राप्त करें, ठीक है. तो आज बच्चों मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 4, ग्राम्य मेलापकम. मेलापकम मीन्स होता है मेला. ग्राम्य मेलापकम गांव का मेला, और इसके साथ ही लंग लकार उत्तम पुरुष. ये जो पंक्तियां हैं ये लंग लकार उत्तम पुरुष की हैं, और ये उत्तम पुरुष एक वचन, ये उत्तम पुरुष द्विवचन, ठीक है. पेज नंबर 23 पे देखिए. संकेत है ऐशा से लेकर के स्मरण तक. ये पहला संकेत है, और ये मैंने यहाँ संस्कृत की पंक्तियां सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए लिखी हुई है, ठीक है. आपको ये पंक्तियां अपनी नोटबुक पे नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको इनका अर्थ समझना है, फिर अर्थ लिखना है अपनी नोटबुक में, ठीक है. ये संस्कृत की पंक्तियां नहीं उतारेंगे आप अपनी कॉपी में. तो बच्चों पहला संकेत है ऐशा से लेकर स्मरण तक. ऐशा मम विद्यालय. एक बात और, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी चैप्टर की स्टार्टिंग होगी तो जो ये पंक्तियां दी हुई है, जो ये संकेत दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आपको संदर्भ लिखना है. संदर्भ चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बार ही लिखना है. प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक देवती के ग्राम्य मेलापकम नमक पाठ से दी गई है, ठीक है. इस तरह से आपको संदर्भ लिखना तो आ ही गया होगा. तो हर चैप्टर की स्टार्टिंग में जब आप अर्थ शुरू करते हैं तो संदर्भ लिखें, ठीक है. बार बार संदर्भ, हर संकेत के साथ संदर्भ नहीं लिखना, सिर्फ एक बार. तो देखिए, एषा मम विद्यालयः अस्ति. यह मेरा विद्यालय है. अहम अद्य पठनाय अगच्छम्. अहम
मीन्स मैं, आदि मीन्स आज, पठनाय पढ़ने के लिए, अगच्छम गया, मैं आज पढ़ने के लिए गया। अहम तत्र अध्यापिकाम अनमम, अहम मीन्स मैंने, तत्र वहां, अध्यापिका को नमस्कार किया। अहम कक्षायाम स्वमित्रेण सह उपाविशम, मैं कक्षा में, स्व मीन्स अपने, मित्रेण मीन्स मित्र के, सह मीन्स साथ, मैं कक्षा में अपने मित्र के साथ, उपाविशम मीन्स बैठा। अहम पाठम अपठम, मैंने पाठ पढ़ा। उत्तराणि च अलिखम, च मीन्स और उत्तर लिखे। अहम अभ्यासमपि अस्मरन्, मैंने अभ्यास भी याद किया। अपि मीन्स भी, मैंने अभ्यास भी याद किया। फिर से देखें, यह मेरा विद्यालय है, मैं आज पढ़ने के लिए गया, मैंने वहां अध्यापिका को नमस्कार किया, मैं कक्षा में अपने मित्र के साथ बैठा, मैंने पाठ पढ़ा और उत्तर लिखे। अहम अभ्यासमपि अस्मरन्, मैंने अभ्यास भी याद किया। ठीक है बच्चों, तो ये पहला संकेत एशा से लेकर अस्मरन् तक कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरा संकेत डालेंगे आवाम से लेकर के आने आओ तक। ये देखिए आने आओ लास्ट वर्ड है। फिर अर्थ लिखेंगे, अर्थ के साथ इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है आपको, संस्कृत पंक्तियां नहीं लिखनी। ठीक है, आवाम उद्यानम अगच्छाव, आवाम मीन्स हम दोनों बगीचे में गए। आवाम अभ्रमाओ, हम दोनों घूमे। उद्यानस्य च सुंदरताम अपश्याओ, और बगीचे की सुंदरता देखी। आवाम तत्र पुष्पाणि अजिघ्राओ, आवाम मीन्स हम दोनों ने वहां फूल सूंघे। जिघ्र मीन्स होता है सूंघना, ये अजिघ्राओ लग लकार का रूप है। आवाम आपणम अगच्छाओ, हम दोनों बाजार गए। आवाम आपणात् फलानि आनयाव, हम दोनों, आपणात् मीन्स बाजार से, फलानि आनयाव फल लाए। हम दोनों बगीचे में गए, हम दोनों घूमे और बगीचे की सुंदरता को देखा। हम दोनों ने वहां फूल सूंघे। हम दोनों बाजार गए, हम दोनों बाजार से फल लाए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये दो संकेत कंप्लीट हो गए हैं। अब तीसरा संकेत है आपका उत्तमः पुरुषः बहुवचनम्। ये तीसरा संकेत होगा, हेडिंग डालेंगे उत्तमः पुरुषः बहुवचनम्। ठीक है, ये है, ये आपका तीसरा संकेत होगा। ओके, हाँ बच्चों, अगला संकेत है उत्तमा पुरुषः बहुवचन, वयम डैश 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 अपवान तक, ये तीसरा संकेत। ठीक है, देखिए इन पंक्तियों का, वयम आचार्यम अपश्याम, वयम हमने या हम सब ने। ठीक है, वयम आचार्यम अपश्याम, हमने आचार्य को देखा या हम सब ने आचार्य को देखा। तदा वयम आचार्यम अनमम, तब हमने आचार्य को नमस्कार किया। वयम क्रीडा क्षेत्रम अगच्छाम, हम खेल के मैदान में गए। वयम तत्र यष्टि क्रीडाम अक्रीडाम, वहां हमने, यष्टि क्रीडा हॉकी, वहां हमने हॉकी खेली। वयम प्रसन्नाः अभवाम, हम प्रसन्न हुए, अभवाम हुए। फिर से देखें, हमने आचार्य को देखा, तब हमने आचार्य को नमस्कार किया। हम खेल के मैदान में गए, वहां हमने हॉकी खेली, हम प्रसन्न हुए या हम सब प्रसन्न हुए। ये संकेत समाप्त हो गया है। अब अगली हेडिंग होगी आपकी लंग लकार से मिश्रिता पे होगा, यानी लंग लकार की ये पंक्तियां जो है मिश्रित होगी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब इसमें मिश्रित होगा। इसका संकेत है बच्चों आचार्यः डैश 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 अवश्यम। अर्थ देखें इन पंक्तियों का,
आचार्याः भो आयुषः त्वं ह्यः विद्यालयं किमर्थं न गच्छा। आचार्य कह रहे हैं, ये कन्वर्सेशन है, संवाद है। भो आयुषा, हे आयुष, त्वं ह्यः विद्यालयं किमर्थं न गच्छा। तुम, ह्यः मीन्स कल, यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। ओके, आने वाले कल के लिए हम संस्कृत में श्वः शब्द का प्रयोग करते हैं। हे आयुष, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे। किमर्थम, क्यों। आयुषा, आयुष, हे आचार्याः अयं ह्यः ग्राम्य मेलापकम् अगच्छम्। हे आचार्य, मैं कल गांव के मेले में गया था। आचार्य, त्वं केन सह गच्छा, तुम किसके साथ गए थे। आयुषा, आयुष, अहम जनकेन सह अगच्छम्, मैं पिता के साथ गया था। आचार्य, आचार्य, किम तव त्वम अनुजः अपि अगच्छत्, क्या तुम्हारा छोटा भाई, अनुज छोटा भाई, क्या तुम्हारा छोटा भाई भी गया था। आयुषा, आयुष, आम मीन्स हाँ। मम अनुजः भरतः अनुजा अदिति च अपि अगच्छताम्, हाँ मेरा छोटा भाई भरत, छोटी बहन अदिति भी गई थी, और छोटी बहन अदिति भी गई थी। फिर से देखें, हे आयुष, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे। आयुष, हे आचार्य, मैं कल गांव के मेले में गया था। आचार्य, तुम किसके साथ गए थे। आयुष, मैं पिता के साथ गया था। आचार्य, किम तव त्वम अनुजा, क्या तुम्हारा छोटा भाई भी गया था। क्वेश्चन मार्क होगा बच्चों यहाँ। हाँ, मेरा छोटा भाई भरत और छोटी बहन अदिति भी गई थी। अपि मीन्स भी। ठीक है बच्चों, तो इन पंक्तियों का ये इतना अर्थ हो गया है बच्चों। आगे की पंक्तियां देखें। आगे की पंक्तियां मैं आपको लिखा रही हूं। हाँ बच्चों, आगे की पंक्तियां देखें। आचार्यः, आचार्य, योऽयं तत्र किम किम अकुरुत अपश्यत् च। योऽयं, तुम सबने, तत्र मीन्स वहां, किम किम क्या क्या, अकुरुत मीन्स किया, अपश्यत् च और देखा। वहां तुम सबने क्या क्या किया और क्या देखा। आयुषा, आयुष, वयं तत्र क्रीडनकानि अक्रीणाम, वहां हमने खिलौने खरीदे। पयोहिमम् आखादाम, और आइसक्रीम खाई। शीतल पेयम चा पिबाम, और शीतल पेय पिया। शीतल पेय यानी जिसे आप कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। मेलापके विशालम चक्रीकम अपि आसीत्, मेले में बहुत बड़ी चरखी भी थी। चक्रीय के केचन जना भयभीतासन, चरखी में केचन जना कुछ लोग, भयभीतासन डरे हुए थे। केचन चा प्रसन्नासन, और कुछ प्रसन्न थे या खुश थे। अहम तद्रूपाविशम, मैं उसमें बैठा। तत्र मीन्स वहां होता है बच्चों, लेकिन यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसमें शब्द आएगा। मैं उसमें बैठा। परम मम अनुजा अदिति न उपाविशत, परम मीन्स परंतु, मेरी छोटी बहन अदिति न उपाविशत नहीं बैठी। वयं मेलापकात् मिष्ठान्नानि अपि आनयाम, हम मेले से मिठाइयां भी लाए। वयम अति प्रसन्ना भुवा, हम बहुत प्रसन्न हुए। अभवा हुए। आचार्य, शोभनम सुंदर। सर्वे छात्रा, सभी छात्र। भो आचार्य, हे आचार्य, वयम अपि मेलापकम गमिष्यामः, हम भी मेला जाएंगे। आचार्य, अवश्य अवश्य। फिर से देखें। आचार्य, तुम सबने वहां क्या क्या किया और क्या देखा। आयुष, हम सब ने वहां खिलौने खरीदे, आइसक्रीम खाई और शीतल पेय पिया। मेले में बहुत बड़ी चरखी भी थी। चरखी में कुछ लोग डरे हुए थे और कुछ लोग प्रसन्न थे। मैं उसमें बैठा, परंतु मेरी छोटी बहन अदिति नहीं बैठी। हम मेले से मिठाइयां भी लाए। आनया, लाए। हम बहुत प्रसन्न हुए।
आचार्य सुंदर, सभी छात्र हे आचार्य हम भी मेला जाएंगे। आचार्य अवश्य अवश्य। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ ही ग्राम्य मेलापकम चैप्टर 4 ये इन पंक्तियों का अर्थ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर का अर्थ कंप्लीट हो गया है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। तब तक आप अपना कार्य पूर्ण करें। कार्य आपका बहुत ही स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद, आपका दिन